Hello everyone. Okay, you guys can also unmute yourself and speak and make the session little bit interactive. Yes. Okay, so basically all of you guys must be having some concerns, some questions regarding last session we had. If you guys do not have any question, I definitely will. So I guess let's just continue. Yeah. Okay, sir. Okay, hi everyone. As you already know, my name is Akib and I have been working as a software engineer since last 4 years into this field of web development. And in the last session, we talked about how exactly the internet works and how the world of web works. I explained you what are servers and how a request is made. Okay, so any one of you can tell me what exactly happens when we type a URL into the URL box of the browser, and can you just give me the flow? Any one of you? When we type in the URL, the HTTP carries the URL and the request to the server, and then the server replies to the okay, query. Then it the answer gets back to us through the HTTP again. Then the domain name is converted into the IP address through DNS resolution, and then it is stored as cache in the browser's ISBDN. Perfect. So that's how basically a URL is converted into an IP address, and then it is visited for the visiting website, and it gets to the server, and server has that HTML page that is returned back to our browser, and then our browser simply renders the HTML. As how many of you have some HTML projects made? How many of you exactly know what HTML is? Can we start from like as simple as full form of HTML? Sir, hypertext markup language. Okay. And how is it? Is it a programming language? Sir, repeat. Is it a programming language? Yes, sir. Okay. No, it is not a programming language. It's a markup language. Okay. So there is a slight difference between HTML and other things you must have heard of Java, Python, okay, JavaScript. All those are programming languages in which we actually code. And HTML is just a markup language. It is not a coding or programming language. Okay. So okay. And what else did I teach you in the last session? Okay. Why is server called a server? What's the logic behind naming a server? And what exactly is a server and what it holds? Can anyone tell me? It is a large computer that holds a lot of data, and it serves a request like a waiter in a restaurant. Right, absolutely. So whenever our browser tries to fetch any file, let's say you have your computer and on your computer you have a .html file, right? Then for your browser, that particular file is located on your system only, right? तो आपके लैपटॉप के लिए आपके सिस्टम के लिए वो सर्वर आपका खुद का लैपटॉप हो जाएगा, राइट? और अगर वही फाइल लेट से कि मेरे लैपटॉप पे पड़ी हुई है, मेरे लैपटॉप पे मैंने अपनी कोई एचटीएमएल फाइल रखी हुई है जिसको अभी आपको अपने सिस्टम पे रेंडर कराना है, अपने ब्राउज़र पे आप हिट करें कोई यूआरएल तो वो फाइल आपके पास व्यू हो, तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, जो कि जब मेरा सिस्टम होगा इसने स्टोर करा होगा कहीं कोई चीज़, आपका जो ब्राउज़र होगा वो मेरे सर्वर पर रिक्वेस्ट देगा एचटीटीपी के थ्रू, जो कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। और फिर फाइनली वो आपको सर्व हो जाएगी वेबसाइट। तो सिमिलर तरीके से जो भी वेबसाइट हैं, आप दुनिया में कोई भी वेबसाइट देखते हैं, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, मेटा, जितना जो भी कुछ है, हर एक वेबसाइट का जितने पेजेस हैं, डॉट एच टी एम एल पेजेस कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। आपका ब्राउज़र बस एक यूआरएल को क्लिक करता है और वो फाइल्स फैच करके लेके आपको दिखा देता है। कहीं न कहीं वो फाइल्स हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं। तो वो फाइल्स जहाँ पे एग्ज़िस्ट करती हैं, हम उस कंप्यूटर सिस्टम को सर्वर कहते हैं। ओके? तो हमारा एक क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? क्लाइंट होता है आपका ब्राउज़र, ठीक है?
और सर्वर, जैसा कि मैंने बोला सर्वर, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है HTTP जो कि जाती है सर्वर पे, देन सर्वर उधर से रिस्पॉन्स देता है जो कि वो HTML फाइल होती है जो कि आपके ब्राउजर पर रेंडर होता है। ये पूरा एक वेब कैसे काम करता है का एक्सप्लेनेशन। ओके ओके। सो आप लोगों के पास क्या कोई क्वेश्चन है? आप मुझे अनम्यूट करके बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को परमिशन दी हुई है, आप लोग उसे अनम्यूट कर सकते हैं। Sir, what is the meaning of rendering? रेंडरिंग, सो रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक HTML फाइल अपने सिस्टम पे बनाई होगी कभी ना कभी, है ना? तो जब आप उसको डबल क्लिक करते हो तो जो ब्राउज़र में खुलता है, तो इस प्रोसेस को रेंडरिंग कहते हैं। जो आपका ब्राउज़र उस फाइल के कंटेंट को शो करता है UI पे, इस प्रोसेस को रेंडरिंग कहते हैं। गॉट इट? Okay, sir. ओके। तो नाउ दैट्स डन। और मैंने आपको IP एड्रेस का कॉन्सेप्ट बताया था। तो इफ एनीवन कैन यू टेल मी कि अगर एक IP एड्रेस क्या डिनोट करता है? IP एड्रेस एक्चुअली होता क्या है इंटरनेट के लिए दुनिया में? तो बताएगा। IP एड्रेस किसी को कुछ भी पता हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना? सेशन को थोड़ा सा इंटरैक्टिव करते हैं, है ना? मज़ा आएगा सीखने में आपको भी और मुझे सिखाने में भी। सर वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है हम्म जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट हम ट्रैक कर सकते हैं किसी भी डिवाइस का। राइट। ओके, ठीक है गाइस। सो आई थिंक हम आज के सेशन पर मूव करते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं। Sir, could you tell what is the meaning of SQL query? SQL करो। सो SQL क्वेरी बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई ना कोई, अभी मैंने जैसे बोला सर्वर होता है, ठीक है? सर्वर पर डेटाबेस होता है। ओके। अब वो डेटाबेस में क्यों होता है कि मान लीजिए जैसे मैं हूँ, ठीक है? मैं अगर आपके क्लास पे क्लास टीचर हूँ, तो कोई एक नोटबुक मेंटेन कर रहा हूँगा मैं, जिसमें मैं आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आप कौन से दिन आए थे, आप कौन से दिन नहीं आए थे, आपकी एड्रेस क्या है घर का, हर एक चीज़ मैं कहीं ना कहीं उस अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो रजिस्टर है, ये समझ लीजिए आपका डेटाबेस है, ठीक है? हर एक इंसान का उसके अंदर स्टूडेंट का डेटाबेस है। तो ये जो डेटाबेस होता है, ये सर्वर जो कंप्यूटर्स होते हैं हमारे, उस पे डेटाबेस इंस्टॉल्ड होता है। और वहाँ पे हम ये डेटाबेस में अपना डेटाबेस बनाते हैं कि मान लीजिए कि अगर मुझे अपने स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाना है, तो मैं एक ऐसा डेटाबेस बनाऊंगा जिसमें कॉलम्स होंगे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, एक्सेट्रा जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है? अब एक बार हमने डेटा स्टोर तो कर दिया, ठीक है? आप गए, आपने एक एक्सेल टाइप की स्क्रीन होती है जिसमें अपना आपने नाम डाला, सब कुछ फिल कर दिया, ठीक है? अब जब कभी आपको वो डेटा देखना हो, मान लीजिए कि मुझे देखना है कि हार्दिका सैनी का फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है? या उनका ईमेल एड्रेस क्या है, तो मैं एक कैसे डेटाबेस से कम्युनिकेट करूँगा, ठीक है? ताकि मैं उससे डेटाबेस से डेटा फेच कर सकूँ। ये प्रोसेस में हम मुझे जो लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, वो लैंग्वेज होती है SQL, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है? तो कुछ वो ऐसे लिखी जाती है कि अगर मुझे आपका हार्दिका सैनी है, उनका अगर मुझे लास्ट नेम फाइंड करना है, ठीक है? और मुझे आपका रोल नंबर पता है, तो मैं वहाँ लिखूंगा सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम हो सकता है क्लास आई थिंक 9, ठीक है? हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 9। इसमें फ्रॉम के आगे जो टेबल का नाम है, सिलेक्ट है कि वो चीज़ सिलेक्ट करो, और स्टार का मतलब है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है? सारी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करके आओ किसकी, अब मैं आपको पूरा बताता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 10 वेयर रोल नंबर इक्वल टू आपका जो कि रोल नंबर हो 1 2 3 फॉर सपोज, ठीक है? अब जैसे ही मैं ये क्वेरी चलाऊंगा, मैं फिर से क्वेरी बताता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, वेयर बेसिकली क्लॉज होता है, ये कंडीशन है कि पूरा टेबल में बहुत सारा डेटा होगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ उस बंदे का डेटा चाहिए जिसका रोल नंबर 1 2 3 है। तो अब ये जैसे ही मैं डालूंगा, तो मेरे सामने वो एक रो आएगी जिसके अंदर आपका सारा डिटेल जो भी उस डेटाबेस में प्रेजेंट होगा वो दिखेगा। तो इस जो मैंने आपको क्वेरी बताई सिलेक्ट स्टार, इस पूरी क्वेरी को कहते हैं SQL क्वेरी, Okay, sir. Thank you. ठीक है? आज हमारा
सेशन होगा HTML पे। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मुझे बताइएगा आप स्क्रीन की बात देखें। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके ओके। सो आज हम देखेंगे HTML क्या होता है, जो कि मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, तो आई थिंक आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कौन बता सकता है कि HTML क्या होता है एक्चुअली? तो बता सकता है HTML सर बेसिकली होता क्या है? HTML कोई भी वेबसाइट का फ्रंट एंड को यूआई पे शो करने के लिए यूज कर जाता है। राइट। सो HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसको यूज करके हम एक अपना कोई वेब पेज बनाते हैं। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो बताएगा एक्सटेंशन क्या होता है इसका? एक सर डॉट HTML HTML या डॉट STM। डॉट HTML एंड डॉट STM दोनों ही वैलिड है, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट बेसिकली एक, मैंने आपको सबसे पहले बताया था वेब क्या होता है। वेब होता है कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। बहुत एक वेब है जिसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स चल रही हैं, वो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है। अब वेबसाइट खुद भी एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। जैसे कि अगर आपने किसी भी लेट्स से फेसबुक है या इंस्टाग्राम या कुछ भी है, आप जब ओपन करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही पेज आपको दिखता है। हो सकता है आप अगर होम वाली पेज पे हो तो आपको आपकी फीड दिखेगी। आप अगर मैसेजेस वाली स्क्रीन पे हो तो आपको वहाँ पे एक अलग स्क्रीन दिखेगी। आप अगर किसी और सेक्शन पे हो तो आपको अलग स्क्रीन दिखेगी। तो ये जो सारी स्क्रीन्स है ना, इन सबको अलग अलग कहते हैं वेब पेजेस। हम बोलेंगे कि ये लॉगिन पेज है, ये मैसेज का पेज है, ये रील्स का सेक्शन का पेज है, ये अलग अलग पेजेस का सेक्शन है। तो पर्टिकुलर एक पेज को, एक स्क्रीन को हम बोलते हैं ये एक वेब पेज है, ठीक है। तो वो जो एक पर्टिकुलर वेब पेज है वो भी हमारा एक HTML फाइल है, जो कि सर्वर ने सर्व करी है और हमारा ब्राउजर उसको रेंडर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है HTML। मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जाम्पल क्या था। अब ये किसने पहली बार देखा है और कौन पहले देख चुका है ये स्ट्रक्चर? स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? यस। यस। तो बताएं आप में से ये चीज़, ये कौन जानता है? मैं ये जानता कभी हूँ। किसी ने देखा है? यस सर। ये कुछ, ये जो आप ये जो टैग्स देख रहे हैं यहाँ पे, टाइटल वाला टैग, क्या होगा कि अगर मैं माई पेज को टाइटल में ना लिख करके जहाँ बॉडी में है हेलो वर्ल्ड उसके ऊपर लिख दूँ तो क्या होगा? तो फिर वो बॉडी में जो टेक्स्ट होगा उसमें अपेयर होगा वेबसाइट के वेब पेज के अंदर। बॉडी और टाइटल में डिफरेंस क्या है? टाइटल तो जो हमारा वेब पेज है उसका नेम होता है, और जो उसके अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर लिखते हैं। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो टाइटल के अंदर माई पेज लिख रहा है, तो जब ब्राउजर में आपको डॉट HTML की फाइल आप ओपन करे होगे तो ये माई पेज कहाँ पे व्यू होगा, कहाँ पे मैं देख सकता हूँ माई पेज लिखा हुआ? एनीवन? माई पेज जो टाइटल पे लिखा हुआ है ये कहाँ विजिबल होगा? कहीं ना कहीं तो माई पेज नाम का जो चीज़ है वो वहाँ पे लिखा होगा ना, ब्राउजर पे। किसी को नहीं पता है या कोई बताना नहीं चाह रहा है? मुझे डाउट हो गया है। ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो आप सारे यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर वर्ड्स देख रहे हैं ये सब एक टैग होते हैं, ठीक है। हर एक टैग का अपना अपना मीनिंग है, और किसी भी टैग को आप किसी के बाद नहीं लिख सकते। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि आप टाइटल का टैग ऊपर लिखते हैं हेड से और हेड का टैग नीचे कर दें। ये एक स्ट्रक्चर होता है HTML का जिसको आपको फॉलो करना होता है, ठीक। तो अभी इसमें क्या होता है, सबसे पहला टैग होता है HTML। HTML टैग बेसिकली बस इतना बताता है कि ये फाइल जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये एक HTML फाइल है, ठीक है। इसमें आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके आगे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं बहुत सारे। HTML के आगे डॉक टाइप होता है, बहुत सारे होते हैं। किसी भी वेबसाइट को आप सेव करेंगे तो आपको दिखेगा डॉक टाइप HTML। तो एनीवेज, तो ये HTML है। हर एक टैग जो ओपन होता है वो नीचे क्लोज भी होता है। आप देखिए यहाँ पे HTML, सॉरी यहाँ पे HTML ओपन हुआ, यहाँ पे HTML क्लोज हुआ।
और इनके ओपन होने का और क्लोज होने का सीक्वेंस सेम रहेगा। अब आप देखिए कि HTML सबसे पहले खुला था, तो ये HTML सबसे बाद में बंद हो रहा है। ठीक है, बॉडी और हेड खुला था, हेड बंद हो गया, बॉडी खुला, बॉडी बंद हो गया। ये जो आप स्लैश देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सेक्शन खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो जो हेड है, हेड के अंदर टाइटल आता है। ठीक है, हेडिंग, किसी भी चीज़ के हेडिंग का मतलब होता है कि उसका टाइटल क्या है। ठीक है, तो जो माई पेज है, ये आप जब किसी भी HTML फाइल को सेव करके ओपन करेंगे, तो आपने देखा होगा आपके वेबसाइट पे एक टैब में कुछ कुछ लिख के आता है। जब आप प्लस करते हैं तो टैब होता है वहाँ पे, तो उस टैब के अंदर क्या लिखेगा ना, वो यहाँ से आता है। ये जो माई पेज आपने लिखा है, वो वहाँ माई पेज लिखना मिल जाएगा। ठीक है, आप जिस भी वेबसाइट विजिट करते हो, फेसबुक विजिट करते हो, इंस्टाग्राम विजिट करते हो, तो आप जब instagram.com डालते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे ब्राउजर में ऊपर जो टैब के ऊपर इंस्टाग्राम लिखा रहता है, फेसबुक लिखा रहता है, गूगल लिखा रहता है, वो ये टाइटल से आता है। ओके ना, तो अभी अभी आपका टाइटल कंप्लीट हो गया, आपने हेड को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक, यहाँ पे आपने हेड क्लोज कर दिया। अब इसके बाद ओपन होता है बॉडी। बॉडी क्या होता है? बॉडी बेसिकली होता है किसी भी वेबसाइट का कंटेंट एरिया, जहाँ पे हम अपना कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम अपना सारा जितना भी हमें जो भी कुछ टेबल्स बनानी है, जो भी डेटा लगाना है, डेटा लिखना है, इमेजेस इंसर्ट करनी है, लिंक्स इंसर्ट करने हैं, वो सारा कुछ हम बॉडी में करते हैं। तो जो हम बॉडी में लिखते हैं, वो स्क्रीन के मेन पोर्शन पे आता है। ठीक है, देन बॉडी ऑफकोर्स खुला है, तो बॉडी भी उसके बाद जस्ट क्लोज हो गया, एंड HTML खुला। जिस सीक्वेंस में खुलेगा उसी सीक्वेंस में बंद होगा। HTML खुला, वो लास्ट में बंद हुआ है क्योंकि वो अभी इनके बीच में सारा कुछ है। हेड खुला, हेड बंद हो गया, बॉडी, बॉडी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स बताता हूँ जो कि एक वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत काम आते हैं। और ये हेडिंग टैग्स होते हैं। पहला तो हेडिंग टैग शुरू होते हैं H1 से लेकर के H7 तक। ठीक है, हेडिंग टैग्स पता है किसी को? H1, H2, H3। आप लोगों ने आई बिलीव HTML पे थोड़ा बहुत पढ़ाई की हुई है, तो कौन बता सकता है हेडिंग टैग्स क्या होते हैं? नीमन, अब तो कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा है। हेडिंग टैग एलिमेंट्स और टाइटल्स सब टाइटल्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं वेब पेज के लिए। नहीं, मैं हेड टैग की नहीं बात कर रहा। मैं H1, H2, H3 जो टैग्स होते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस। आप अगर ये देख पा रहे हो, तो कभी भी आपने कोई HTML फाइल बनाई हो, तो आप वहाँ पे H1, H2, H3 कई बार लिखते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं लिखूँ H1, दिस इज वेब डेव सेशन। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिमिलरली एक और बार यहाँ नीचे लिखूँ H2। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा जब ये वेब पेज पर दिखेगा? किसी ने यूज़ किया है ये टैग अभी तक? यस सर, इनके फॉन्ट साइज में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होगा H1 और H2 में? H1 is the highest font size and H2 is smaller than that. होगा क्या इन दोनों लाइंस में? जब मैं वेबसाइट को ओपन करूंगा, एक प्लेन ब्लैंक वेब पेज है जहाँ पे ये दोनों लाइन लिखी होंगी। ठीक है, अभी मुझे हम्म। बताइए क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में? क्या कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा? तो अगर ऐसा है कोई छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा Yes. कौन Rashi सा वाला Gupta छोटा is होगा? saying that H1 is bigger than H2. Actually, the राइट, mic is not working of Rashish. That's ओके, why. Yeah. ओके। सो या सही बोला एकदम। सो बेसिकली क्या होता है कि जो H1 टैग होता है वो बड़ा होता है, तो ये जो दिस इज वेब डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ये जो H1 वाला है ये बड़ा दिखेगा, और H2 वाला छोटा दिखेगा। अब ये H1 से लेकर के H7 तक जाती है। H7 इज द स्मॉलेस्ट एंड H1 इज द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है H1 एंड देन H7। ओके, तो फिर इसके बाद क्या होता है, ये पैराग्राफ टैग होता है। अब लेट से कि आपने कुछ लिखा, दिस
is my classroom and I am learning HTML. क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर मुझे ये दो पैराग्राफ में लिखना हो, दिस इज माई क्लासरूम एक पैराग्राफ हो एंड आई एम लर्निंग HTML एक दूसरा पैराग्राफ हो, तो कैसे करेंगे? We could use line break or something. हाँ, बट लाइन ब्रेक, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, लाइन ब्रेक तो कहाँ पे लाइन ब्रेक यूज करूँ मैं? Sir, after and. अच्छा, मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक नोट कर दूँ, ठीक है। तो क्या अब मुझे इसको लाइन ब्रेक को बंद नहीं करना पड़ेगा? लाइन ब्रेक को क्या मुझे बंद करना पड़ेगा? No, sir. क्यों? क्योंकि ये दो तरीके के टैग्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं टैग्स जिसे हम एक्सप्लिसिटली जा करके स्लैश लगा के बंद करते हैं, ठीक है। और कुछ टैग्स होते हैं जिसको हम एक टाइम यूज करते हैं, बस उसको क्लोज नहीं करते, तो ये नॉट क्लोजिंग टैग्स हैं, ठीक है। ये लाइन ब्रेक नॉट क्लोजिंग। अगर हमने लाइन ब्रेक यूज किया तो होगा क्या कि ये ऐसे हो जाएगा, हाँ, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ये पैराग्राफ में चेंज करना था ना, या अगर थोड़ा सा बड़ा एक सेंटेंस होता तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा था। अगर मुझे यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी है तो मैं सिंपल BR टैग यूज करूँगा, लेकिन अगर मुझे सिंपली एक पैराग्राफ टाइप का बनाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर बोलूँ तो यहाँ पे आपको ये P टैग यूज करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि P टैग आपने यूज किया, आप यहाँ पे जो भी कुछ लिख लें, यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखें, ठीक है, जितना कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर लें, देन होगा क्या, आप जब इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे की, तो अब आपने जो भी इस स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग के बीच में लिखा हुआ है ना, ये एक पैराग्राफ बन जाएगा। आपने किसी भी बुक में देखा होगा कि वो पैराग्राफ में लिखने का ट्राई करते हैं, एक चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देन एक छोटा सा स्पेस वगैरह होता है उधर, एंड देन नीचे एक दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट, देन तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट। तो ये उस तरीके की बात होती है। ये टैग है जो कि बस एक पैराग्राफ यूज करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं पैराग्राफ टैग, ओके। लाइन ब्रेक मैंने आपको बता ही दिया कि आप BR यूज करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी हो अपने में, यहाँ पे वेब पेज पर, तो अगर आप लिखें दिस इज माई क्लासरूम, ठीक है, अब आप चाह रहे हैं इसके आगे एक वेबसाइट पे एक इमेज इंसर्ट हो जाए, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक इमेज टैग लगाएंगे, ठीक है, इमेज, एंड देन उसके आगे यहाँ पे अपना सोर्स लिखेंगे, सोर्स इक्वल टू अपना जो आपका फाइल का पाथ है वो पूरा पूरा पाथ लिखेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे वो इमेज इंसर्ट हो जाएगी, ओके। ये भी ओपन क्लोज का टैग, खाली इसको क्लोज नहीं करना पड़ता है, ठीक। अब ए लिंक का क्या मतलब है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होता है। ये टैग बेसिकली क्या करता है, एस आप मतलब आपने वेबसाइट देखी होगी कोई भी, तो उस वेबसाइट पे आप कुछ बटन्स होते हैं जिनको क्लिक करते हो, या कोई लाइन होती है तो क्लिक करते हो तो एक दूसरे वेब पेज से पहुंच जाते हो। कभी किसी ने ऐसा नोटिस किया है? तो जो लिंक्स होते हैं, बताइए Sir, थोड़ा। hyperlink. हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स बेसिकली, तो जब आप क्लिक करते हैं तो आप एक दूसरे वेब पेज से पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपका दूसरा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये ए लिंक करता है, लिंक करता है एक दूसरे पेज से, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए हम ये ए लिंक यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही बताया कि जो H1 होता है वो बिग हेडिंग के लिए होता है, H2 होता है मीडियम के लिए, और H3 स्मॉल। यही तीन हैं जो कि मेजरली यूज करे जाते हैं। इन तीनों से सारा हेडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। H4 से लेकर H7 तक बहुत ही छोटे छोटे फॉन्ट्स हो जाते हैं। अगर आपको कहीं यूज करना है टर्म्स एंड कंडीशन लिखने वगैरह के लिए तो वो यूज कर सकते हो, बाकी इन तीनों में आपका मेजर काम नहीं होता है। मैंने आपको पैराग्राफ भी बताया कि कैसे पैराग्राफ प्लेस करा जाता है, कैसे राइट करा जाता है पैराग्राफ ताकि अच्छा दिखे। बस ये बेसिकली एक दिखाने का तरीका है कि कैसे होता है। हाँ सॉरी, H6, में से बोला, H7 नहीं होता है, H6 तक जाता है, ठीक है। वो H6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है, H7 तक नहीं जाता, सॉरी। थैंक्स।
और मैंने आपको इमेज का भी बताया कि इमेज कैसे बेसिकली होता है। अगर कोई आपकी वेबसाइट है जिस पे आपको इमेजेस इंसर्ट करनी है, तो उस पे आप इमेज का सोर्स डिफाइन करते हो कैट डॉट जेपीजी। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक फ़ोल्डर बनाया जिसके अंदर आपकी डॉट एचटीएमएल फाइल है, ठीक। अब आप अगर वहाँ पे कैट डॉट जेपीजी नाम की फाइल प्लेस कर दो, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? वहाँ पे अगर आप एक कैट डॉट जेपीजी की फाइल इंसर्ट वहाँ पे आप प्लेस कर दो, और आप जब उसको रन करो अपने कोड में, आपने एचटीएमएल के मार्कअप में आपने लिखा होगा कैट, ये लाइन लिखी हुई है लेट्स से इमेजेस आर सी कैट जेपीजी बॉडी के अंदर, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ वहाँ पे एक इमेज दिखने लग जाएगी कैट डॉट जेपीजी में जो आपकी होगी, ठीक है। हर एक टैग का एक एट्रीब्यूट्स होता है, मैं आपको एट्रीब्यूट्स अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है बेसिकली। और जैसे कि आप ये एसआरसी देख रहे हैं, ये इसका वो होता है, ये टैग्स होते हैं, ये ऑल्ट देख रहे हैं आप, इसका टैग होता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, मेरे पास स्लाइड्स हैं उसकी, क्योंकि हर एक टैग की मैं आपको एट्रीब्यूट बताऊंगा, और तब मैं ये ऑल्ट पे भी आऊँगा। ओके, सो मैंने आपको बताया कि ए जो होता है AHREF, ये लिंक्स के लिए होता है। लेट्स से आपकी कोई भी वेबसाइट है, लेट्स से आपके पास है कि एक वेब पेज है, इस पर आपने लिखा हुआ है दिस इज द लिंक टू माय लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे आपने बोला अभी अगर लेट्स से मैं नॉर्मल लिखूँ HTTPS, ठीक है, मैं यहाँ बोलूँ linkedin.com/, ठीक है। तो अभी क्या होगा कोई बता सकता है? हमें से किसी ने भी कभी लिंक के टैग यूज करे हैं, AHREF वगैरह? हाँ, तो आप राजेश बता सकते हैं कि इस लाइन से क्या होगा? कोई बता सकता है कि अगर मैं ये अपनी वेबसाइट पे ये लिखूं सिंपल एक बॉडी के अंदर, तो क्या दिखेगा? मैं अगर इतना पोर्शन की बात करूँ, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं लिंक्डइन अकाउंट, ये एज अ टेक्स्ट दिखेगा वहाँ पे, ये क्लिकेबल नहीं होगा। ओनली लिंक विजिबल बट इट इज अनक्लिकेबल, राइट। वहाँ ये लिंक भी नहीं विजिबल होगा, मतलब ये बस ऐसे ही दिखेगा, एक लिंक होगा। लिंक हम इसको लिंक को लिंक तब कहते हैं कि जब आप उस पर क्लिक करके किसी दूसरी जगह पे पहुंच पाओ। आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट होगा वहाँ पे एकदम ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो कि ये एक्चुअली उस तरीके से काम करे, तो आपको यहाँ पे इसको इसमें कोड करना पड़ेगा। ये ऐसे है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे विजिट माई, ठीक है जी। ठीक, अब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आपने अपना ये विजिट माई लिंक्डइन टाइप का वहाँ पे एक लिंक होगा जो कि प्रेफरेबली ब्लू कलर में है। तो क्या होगा कि आप जब उस बटन को क्लिक करेंगे, आपको ये चीज़ लिखा हुआ नहीं दिखेगा वहाँ पे, आपको कहीं भी वेब पेज पे ये मेंशन हुआ नहीं दिखेगा। आपको वेबसाइट पे दिखेगा, वेब पेज पे विजिट माई लिंक्डइन। जैसे ही आप विजिट माई लिंक्डइन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको वो लिंक्डइन इस लिंक पर लेके जाएगा पेज पर, और आपकी वेबसाइट छूट जाएगी पीछे, और वो वहाँ चला जाएगा लिंक्डइन पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज होपिंग कि हम कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं, तो अश्विनी, क्या हम कोई इस मतलब स्टूडेंट से स्क्रीन शेयर कराने का ऑप्शन दे सकते हैं हमको? यस सर। तो मैं वॉलेंटियर करना चाहूँगा। कौन अपना बेसिकली मुझे एक H1 टैग यूज़ करके दिखा सकता है? You can let me know the name now so I can promote him or her as a panelist. ओके, Yeah. सो AHREF मीन्स सो शगुन। सो AHREF मीन्स बेसिकली क्या होता है, आप किसी वेबसाइट पे, किसी भी वेब पेज पे, ठीक है, आपको वहाँ से किसी दूसरे वेब पेज पर जाना है,
जाने का मतलब मान लीजिए कि आपकी कोई कुकिंग चैनल है या कोई भी चैनल है, उसमें आप चाहते हैं कि कोई बटन हो या आप उस बटन को क्लिक करें तो वो आपके इंस्टाग्राम तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उसमें आपको उस बटन के पीछे कोई ना कोई लिंक लगाना पड़ेगा, राइट। तो मान लीजिए कि आपने बटन बनाया, उस पर आपने लिखा विजिट माई इंस्टाग्राम, और उस इंस्टाग्राम, ये मैंने आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, स्क्रीन देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि आप विजिट माई लिंक्डइन है, ठीक है, ये बटन विजिबल होगा और ये लिंक हमने इसमें एम्बेड कर दिया। एम्बेड करने का मतलब होता है कि इस बटन के पीछे हमने छुपा दिया है उसको, जब आप इस बटन को क्लिक करोगे तब आप लिंक्डइन के पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, आई होप शगुन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके, तो राजेश ने बोला है कि वो उसके लिए पूछेंगे, तो राजेश को आप स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन Yeah, देंगे। I promote him as a panelist. Yeah. ओके, तो पहला टास्क राजेश आपके लिए है कि आप अपना नाम या कुछ भी आपको लिखना है H1 टैग यूज करके दिखाइए। और He will be joining from different links, so just give him 1 or 2 minutes. श्योर श्योर, ओके, एनीवन, और किसी के कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? मैं चैट्स भी मैंने ओपन कर लिए तो मुझे दिख रहा है, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता। ऑल्ट का एक क्वेश्चन था ऊपर, अश्विनी ने जो है आंसर किया था। तो बेसिकली ऑल्ट क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क इश्यूज की वजह से आपकी इमेज नहीं विजिबल हो रही है, या हो सकता है किसी रेजोल्यूशन की वजह से नहीं विजिबल हो रही है, कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ब्लैंक वहाँ पे शो करेंगे तो उसकी जगह पे हम क्या शो कर सकते हैं रिटर्न में। तो वो वहाँ पे उसको ऑल्टरनेटिव, ऑल्ट आया ऑल्टरनेटिव से, इमेज को ऑल्टरनेटिव वहाँ पे वर्ड शो कर देता है। दैट इज इट, एट्रीब्यूट्स होता है ये बेसिकली इमेज टैग का। Yes, sir. Ashish is there. ओके, राजेश, आप स्क्रीन शेयर करिए और हमें सिखाइए कि हम हेडिंग्स कैसे बनाते हैं। क्या राजेश का माइक नहीं चल रहा? आई थिंक इज सेइंग दैट हिज माइक इज नॉट वर्किंग। नो इश्यूज, यू कैन जस्ट शेयर योर स्क्रीन No worries. ऑन अ नोट स्क्रीन। बेसिकली आप अपना नोट पैड ओपन करके स्क्रीन शेयर करिए जहाँ पे आप HTML लिखते हैं। या VS कोड इज ऑल्सो अ गुड एडिटर फॉर HTML, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। HTML बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। हम आई थिंक वेब डेवलपमेंट में मेरा ये प्लान था, मैं आपसे पूछने वाला भी था कि अगर आप में से कोई जावा सीखना चाहता हो, जावा का बेसिक सीखना चाहता हो जो कि बहुत ही वेब डेवलपमेंट पे एक मेजर, तो मैं आपको उस टाइम पे VS कोड और अलग अलग IDEs जो होता है, IDE बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर बेसिकली हमारा सारा का सारा कोड लिखा होता है। VS कोड भी IDE है। तो आप कोई भी आईडी किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए। डोंट लेट एनीवन टेल यू कि इसके लिए यही यूज़ करना है, उसके लिए वही यूज़ करना है। यू प्लीज चेक विद राजेश मैम। I think वो लिंक लेने गया होगा किसी टैब पे, मे बी। आई गेस। तो जब तक राजेश आ रहे हैं उनसे पहले अगर कोई करना चाहता है, आई थिंक लेट्स गिव चांस टू शिवोहम। शिवोहम। आई गेस ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस, आई गेस। Shivoham, can I promote you as a panelist? क्या हो गया, फन एक्टिविटी के नाम पे बच्चे गायब क्यों होते हैं? My laptop is unavailable at the moment. Okay. Okay, कोई Shivoham. बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ पे खुद लिख दूंगा आपके लिए। ठीक है, आपका आई थिंक माइक भी सही है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है जहाँ पे आपका नाम एज अ हेडिंग लिख रहा होना चाहिए, और नाम मीडियम साइज का होना चाहिए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, तो बताइए मुझे, आप गाइड करिए मैं क्या लिखूँ। शुरुआत से पूरा स्ट्रक्चर HTML से लेकर के खुल के HTML बंद तक। शिवम, कोई भी बोल सकता है, शिवम, श्रेयांश, आशीष, और भी थे लोग, टेक्स्ट पे रेहान, हरदेव, कोई तो बोलो यार। मेरे ही सेशन में सब शांत हो जाते हैं क्या? मैंने सुना है कि और सेशन इंटरेक्टिव होते हैं। आई थिंक Done. राशि। हम्म, You can like the page so that we can check what is the output of this. Yes, 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 you can open. राशेष आप बंद कर दो।
Ashwini, can you please check? I think he's having some issues in screen sharing. Yes, yes, yes. Your screen is visible. Right. ओके, सो हमें नोट पैड पे ले चलिए। ओके, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करेंगे, कंट्रोल प्लस प्लस। ओके, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आप इसमें जो ये जो राजेश गुप्ता है ना, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, इसको छोटा करके दिखाइए। तो नाइस, गुड। ये आपको जो यूट्यूब का लिंक है ये आ रही है। ओके, इसको एक काम करिए, इसको कंट्रोल ए करिए, इस पर कंट्रोल ए, कंट्रोल नहीं, पूरे पे, पूरे फाइल पे, पूरे फाइल पे, ये जो नोटपैड की पूरी फाइल है ना, इस पे कंट्रोल ए एंड देन बैक स्पेस। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे लिख के दिखाइए कि अब मुझे एक राजेश गुप्ता और नीचे एक पैराग्राफ ऐड करके दिखाइए पहले। ओके, इसको सेव करिए और पेज रिफ्रेश करिए। आपने डेलिबरेटली यहाँ पे हेड मिस कर दिया या आप भूल गए? HTML के बाद जो हेड टैग होता है स्ट्रक्चर में बेसिकली। ओह, नाइस आंसर, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। सही है, बढ़िया। अब मैंने इन्होंने ये आंसर दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इनसे सिर्फ ये बोला कि आप बॉडी में अपना नाम मेंशन कराइए, पैराग्राफ मेंशन कराइए। मैंने इनको बिल्कुल नहीं बोला कि आपको टाइटल भी मेंशन करना है। इफ आई हैड सेड इट कि आपको टाइटल भी दिखाना है, तो ये वहाँ पे हेड यूज करते हैं, उसके नीचे टाइटल यूज करते हैं। ठीक है, गुड गुड राशि। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्दर कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में आप लोगों ने जावा वगैरह का आई थिंक अंडरस्टैंडिंग सुनी है? जावा फ्रंट एंड बैक एंड जावा। सर हम फ्रंट एंड जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। एंड जो बैक एंड टेक स्टैक होता है वो जावा का होता है। ठीक है, तो हमें किसी ने सुना है कि जावा, आई हैव हर्ड दैट जावा इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। नहीं, सर ओनली हर्ड। नहीं राजेश, जावा अगर आपने एक बार उसको बहुत अच्छे से कर लिया है ना शुरुआत से, तो आपके लिए दुनिया की कोई लैंग्वेज कभी भी टफ नहीं रहती। जावा इस काइंड ऑफ स्टार्टर पैकेज। आप कहीं भी वेब डेवलपमेंट में आप शुरुआत करेंगे तो दे वुड सजेस्ट यू कि आप बैकएंड का टेक स्टैक अगर कर रहे हैं तो जावा से करें। एनीवेज, तो मुझे मैं यहाँ पे मुझे पोल चाहिए, वोट चाहिए कि आप कितने लोग चाहते हैं कि मैं जावा के भी सेशंस कवर करूँ फर्दर अपने सेशंस में, क्योंकि फिर आपका वो एक काइंड ऑफ फुल स्टैक चीज़ हो जाएगी। तो उस तरीके से मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाऊंगा नेक्स्ट सेशंस में जावा भी। ओके, मैसेज सेड इनटू जावा, यस अभिनव सर। सेड जावास्क्रिप्ट। और कोई मुझे वोट चाहिए, आप यहाँ पे अपना वोट लिख सकते हैं। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट जो एक लैंग्वेज होती है जो कि फ्रंट एंड पे चलती है, तो उसका जावा स्क्रिप्ट से आप नाम में मत जाइएगा, उसका जावा से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, जावा से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, इट्स जस्ट अ नेम जावा स्क्रिप्ट। ये बस एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि एक ब्राउज़र पे रन होती है। ठीक है, ये एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए यूज होती है, जैसे कि आप जो भी अपनी वेबसाइट पे जो भी चीज़ें देखते हैं वो फंक्शन कैसे करती हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वेब पेज है, उसमें जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होगा, जो किसी दूसरे वेबसाइट पे जाना हो, और जितने भी बैकग्राउंड के फंक्शन हो, बटन ऐड करने हैं आपको, बटन की फंक्शनैलिटी हो। लेट्स से कि मेरे को एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो कि जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो वो वेब पेज डार्क हो जाए और लाइट हो जाए। ठीक है, तो मैं उस ऑन क्लिक बटन एक्शन पे एक एक्शन लगा दूंगा, जिस बटन को क्लिक करते ही वो वेबसाइट डार्क हो जाएगी, और एक दूसरा बटन होगा जिसको क्लिक करूंगा तो वेबसाइट नॉर्मल मोड में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो फ्रंट एंड पे होती हैं, जो कि
काइंड ऑफ कंट्रोल वाली चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड से रिलेटेड, ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, और जावा क्या होता है? जावा बेसिकली होता है जो आपका बैकएंड होता है। जो मैं सर्वर्स की बात आपको बता रहा था, सर्वर्स होता है वो डेटाबेस से कैसे कनेक्टेड होता है, और लेट से हमको कोई डेटा चाहिए तो, और तो हम कैसे डेटा ला सकते हैं सर्वर से। लेट से हमको किसी स्टूडेंट का डेटा चाहिए, ठीक है, तो वो स्टूडेंट का डेटा हम किस तरीके से सर्वर से फेच करके ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे कूल थिंग्स होते हैं जावा में। ठीक है, तो जावा बैकएंड टेक स्टैक है और जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड टेक स्टैक है। तो मुझे आप बता दीजिए, मैं इस सेशन के बाद आपके यहाँ से वेबिनार के चार्ट्स पढ़ लूँगा, और उसी हिसाब से मैं फिर आगे के सेशन में आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जावा एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इट्स अ वंडरफुल लैंग्वेज, और वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जावा एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, बाकी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ एडवांस टॉपिक्स बस दिखाऊंगा। बेसिक से ही स्टार्ट होगा, जिस तरीके से मैं HTML वगैरह आपको करा देता हूँ उसी तरीके से आपको बेसिक करा भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आपको लर्न करने में थोड़ा मज़ा भी आएगा। और HTML वगैरह में इतना वाइड चीज़ें नहीं होती हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें हूँ। HTML एक बेसिक सी लैंग्वेज है, इसमें CSS अभी मैं कुछ यूज़ करूँगा, क्योंकि फ्रंट एंड पे ही रहता है सब चीज़ें। HTML है, CSS है, आप थोड़ा और पढ़ोगे तो HTML, CSS देन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट हैं जो कि मिलकर के फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं पूरा, कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पे बटन्स हैं, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो फ्रंट एंड से प्योरली रिलेटेड होती हैं, वो ये तीनों चीज़ें करती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और आप इसमें अगर जावा ऐड करते हैं तो ये आपका एक फुल स्टैक डेवलपर आपको बनाता है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन में बताता हूँ। अब टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको एट्रीब्यूट्स बताऊंगा, जो ऑल्ट वाला क्वेश्चन था आपका। तो क्या होता है कि हर एक टैग का अपना एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि आपका ए जो है, ये ए जो है ये एक टैग है। ठीक है, ये जो इसका एच आ रही है ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई भी टैग में कोई प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, लेट से कि हमारा ए टैग है। ठीक है, अब मैं अगर खाली इसको यहीं क्लोज करूँ तो इसको ये पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, ये कोई लिंक है। लेकिन अभी इसे ये नहीं पता चलेगा कि इस लिंक बटन पे क्लिक करने से जाऊं कहाँ मैं गूगल बटन प्रेस करूँ तो बटन तो बन गया, लेकिन अभी जाना कहाँ है, तो बताओ। तो वो जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो उसकी क्वालिटीज हैं, वो उसकी बेसिकली क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफाइन करता है। अब एच आ रही है, बाद में आपने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। ओके, अब आपको पता चल गया कि आप जब गूगल वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप HTTP google.com पे लिख दो, ये इसका एट्रीब्यूट है। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली आपको इमेज वाले में बता रहा था, वो ALT जो था उसमें बेसिकली क्या होता है, वो ये बताता है कि ठीक है, इमेज को आपने सोर्स बना दी, लेट से कि किसी वजह से इमेज रेंडर नहीं हो पा रही है या इमेज डिलीट हो गई, कुछ भी हो गया है वजह, अब नहीं वो दिखा पा रहे हैं हम लोग, तो उसकी जगह ऑल्टरनेट क्या दिखाएंगे, तो उस ऑल्टरनेट में जो आप टेक्स्ट डालेंगे ना वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। हेडिंग टैग में जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अभी तक आपको सिर्फ H1 तक बताया है ना, कि अगर H1, H2, H3, लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स नहीं बताए। ये एट्रीब्यूट्स हैं। H1 का एट्रीब्यूट है अलाइन, और इसमें तीन ऑप्शन होते हैं, सेंटर, लेफ्ट और राइट। मान लीजिए कि अभी हमने राजेश का नाम देखा था UI पे, तो लेफ्ट में चिपका हुआ था। ठीक है, अगर हम चाहें कि वो सेंटर में आ जाए तो हम उसके अंदर अलाइन इक्वल टू सेंटर लिख देंगे, और वो राजेश बीच में सेंटर में दिखने लग जाएगा, और उसके नीचे जो भी चीज़ होंगी वो नॉर्मली काम करेंगे। ठीक है, तो H1 में आपने ये यूज़ करा, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं H6 तक। ठीक है, और हमारे पास सिमिलरली पैराग्राफ में भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, कि आप पी टैग यूज़ करा, उसके अंदर आपने अलाइन और लेफ्ट का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो पैराग्राफ लेफ्ट साइड आई जाएगा। बहुत जगह आपने देखा होगा कि लिखने का अपना अपना तरीका होता है, कुछ कुछ बुक्स में भी आपने देखा होगा वो पैराग्राफ सेंटर में होते हैं, और इधर वाइट स्पेस पैराग्राफ सेंटर में, और वो पूरा पैराग्राफ सेंटर में बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अलाइन इक्वल टू सेंटर लिख दें तो वो हो जाएगा। अलाइन इक्वल टू लेफ्ट मतलब लेफ्ट से चिपक के पैराग्राफ सारे रहेंगे, और अगर राइट से बोलूंगा तो राइट में अलाइंड रहेंगे वो सारे, लेफ्ट में स्पेस खाली होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो जितने भी हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एक टैग के। ओके, फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट टैग क्या होता है, लेट से कि आपने सिंपल
तो लेट से आपने अपना नाम लिखा राजेश गुप्ता, ठीक है, और वो सिंपल प्लेन लिखा हुआ है। अभी आपको उसकी स्टाइलिंग करनी है। आप चाहते हैं कि वो राजेश का कलर हो जाए रेड, और फेस क्या होता है? फेस बेसिकली होता है, आपने किसी ने भी वर्ड यूज़ किया होगा, एमएस वर्ड या कहीं पे भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे टाइप होते हैं, फेस फॉन्ट फेसेस होते हैं कि आपको कौन सा टैग यूज़ का टेक्स्ट का फॉन्ट यूज़ करना है। लेट से टाइम्स न्यू रोमन, और बहुत सारे होते हैं, एरियल। तो आप यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज में एट्रीब्यूट में डाल सकते हैं कि फॉन्ट का फेस हो एरियल, फॉन्ट का कलर हो रेड, ठीक है, और साइज हो 5। अब इससे होगा क्या, ये जो हेलो है ना, ये एग्जैक्टली रेड कलर का दिखेगा, एरियन टाइप में दिखेगा। हाँ, आप यूज कर सकते हैं H1 के अंदर, आप कुछ भी आप अगर यहाँ पे इसके आगे H1 लिख दें ना, मैं अभी एडिट नहीं हो रहा, यहाँ पे अगर आप H1 लिख दें और H1 यहाँ क्लोज कर दें, तो H1 का भी जो प्रॉपर्टी होगी वो हेलो पे अफेक्ट करेगी, और ये जो आपने यहाँ पे फॉन्ट कलर वगैरह यूज किया है ये भी हो जाएगा। होगा क्या, ये रेड भी हो जाएगा, एरियल भी हो जाएगा, साइज भी खड़ी हो जाएगा, और वो H1 जो आप लगाएंगे वो H1 की वजह से बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, गिवन दैट आपने प्रॉपरली H1 यहाँ यूज किया हो और यहाँ क्लोज किया हो। ठीक, ओके। तो फॉन्ट टैग के बेसिक एट्रीब्यूट्स देते हैं कलर, फेस, साइज। ठीक, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स एग्जाम्पल थे। अब इमेज का एट्रीब्यूट दिखाता हूँ मैं आपको। इमेज एक टैग है, ठीक है, ये सिंपल एक टैग है। अगर मैं आपको इमेज यहाँ खोलूँ और यहाँ पे इमेज बंद कर दूँ और बीच में कुछ भी ना लिखूँ, तो होगा क्या, ये प्लेन ब्लैंक ब्लॉक ऑफ इमेज बस यूआई पे दिख जाएगी पड़ेगा, कोई उसका सोर्स नहीं है, ठीक है, उसको कुछ नहीं बताया नहीं हमने कि कहाँ से लेके आनी इमेज। तो आपका इमेज है, उसके अंदर आपने सोर्स का एट्रीब्यूट यूज किया, तो होगा क्या कि सोर्स के अंदर जो आपने cat डॉट जेपीजी लिखी हुई है, ये वो वाला बताएगा। आपके अगर सेम फोल्डर में है, अब अगर तो आपके सेम फोल्डर में है वो वेब पेज और जेपीजी, तो आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर मे बी पॉसिबल है कि ये पेज आपका अलग कहीं पड़ा हुआ हो और ये इमेज आपके कहीं और हो, तो आप क्या करेंगे, अपना उस पर्टिकुलर जगह का जो एड्रेस होता है, जैसे कि मान लीजिए कि लेट से कि मेरी फाइल ये यहाँ पे पड़ी हो डाउनलोड्स, तो ये जो यहाँ एनिमेशन, ठीक है, तो एक आपकी मान लीजिए कि यहाँ फाइल पड़ी है, तो ये आप पूरा ये कॉपी करके आप इसके अंदर यहाँ पेस्ट करेंगे, ये पूरा फाइल जेपीजी लास्ट में और उसका पूरा पाथ। ठीक है, ओके, ठीक। तो सिमिलरली विड्थ का भी होता है इसमें एट्रीब्यूट, हाइट का भी होता है, ऑल्ट बेसिकली क्या यूज़ करना है कि अगर वहाँ पे इमेज नहीं भी हो रही है। ओके, इसका हो गया। लिंक टैग मैंने आपको बताया, ये जो टैग है उसके अंदर href है, जिसके अंदर आपका ये लिंक होगा, और यहाँ पे होगा कि गूगल आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक पर पहुँच जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ब्लैंक हो जाएगा, टारगेट एट्रीब्यूट यूज करके वो ब्लैंक रहेगा। लाइन ब्रेकिंग टैग में इसमें हाँ, ये अलाइन इक्वल टू लेफ्ट डिफॉल्ट होता है। अगर आपने कोई कहीं सिर्फ नहीं यूज़ किया है तो वो फिर डिफॉल्ट रहता है। अब ब्रेक, लाइन ब्रेक, ठीक है, इसका कोई नो क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट भी नहीं होते हैं, ठीक है, सिंपल है तो। ओके, मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ जो कि आप नेक्स्ट सेशन में होपफुली करके लेके आएंगे सब लोग, और जिनकी भी अटेंडेंस होगी उनसे मैं ये चीज़ ज़रूर पूछूंगा कि आप एक वेब पेज डिफाइन करिएगा जिसमें हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, फॉन्ट टैग हो, जिसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट फेस, कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर एक इमेज हो और उसके अंदर एक लिंक हो। ठीक है, Ashwini, I'm giving them a homework kind of activity if that is permitted, I guess. Okay. So I would just like to see that in incoming session. Okay. Okay, guys. आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेसिकली समझा कि HTML क्या होता है, उसके टैग्स क्या होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स की H1, T, फॉन्ट, इमेज दिया। ठीक है, तो अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। अ, कोई भी आप में से टेक्स्ट पे ही मुझे बता सकता है कि फॉन्ट का एक टाइप आप चेंज करके मुझे दिखाइए।
फॉन्ट टाइप मुझे जो लिख लगाना है टाइम्स न्यू रोमन या एरियल यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लिखिए अपना नाम और उसको एरियल फॉर्मेट में मुझे लिख करके दिखाइए। रेहान, मैंने एक्टिविटी शेयर कर दी है ऊपर, आप देखिए, क्रिएट अ वेब पेज कंटेनिंग हेडिंग पैराग्राफ कॉन्टैक्ट विद कलर इमेज एंड लिंक। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो अभी मैं ये पूछ रहा था कि आप में से कोई भी मुझे फॉन्ट टैग यूज़ करके दिखाइए अपने मैसेज पर, टेक्स्ट पे आप लिख के यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। टाइम आपको जो कलर है फॉन्ट का वो रखना है रेड, ब्लू, ओके। वशिष, आपने लास्ट टाइम तो मैंने नहीं बोला था, नहीं किया था, अभी इस बार मैंने बोला आपने कर दिया। H1 क्यों यूज़ करा, मैंने तो नहीं बोला था। H1 यूज़ करने का कोई सिग्निफिकेंट रीज़न कि आपने यहाँ पे H1 टैग यूज़ किया हुआ है? We can, but in the question I did not mention. I did not ask you. Like in the earlier question, I did not ask you to actually use the title tag. Similarly, in this question also, I did not ask you to use H1 tag. Okay. So, anyways, राजेश ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो कि परफेक्ट है। फॉन्ट कलर ब्लू और आशीष गुप्ता इलेक्ट्रिक, ठीक है। ओके, और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बट आई वांट टू आस्क यू। ओके, सॉरी। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने प्रिपेयर करा था, जो कि आई वुड आस्क यू। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग? बता रहे थे। ओपनिंग टैग टेल्स स्टार्ट ऑफ टैग, क्लोजिंग टैग स्टार्ट ऑफ। और अब क्या होगा कि अगर हम कोई ओपनिंग टैग यूज करें और उसको क्लोज ना करें, कि उस केस में क्या होगा? क्या ब्राउजर इग्नोर कर देगा ये गलती, या कुछ एरर आएगा? सो द ब्राउजर विल इग्नोर। आर यू श्योर? ये कभी आपने एक्सपीरियंस किया है खुद से कि क्या होगा कि कभी ब्राउजर, मतलब दो तरीके के टैग होते हैं, ओपनिंग टैग्स को अगर आप ओपन रहने दें, क्लोज ना करें, तो क्या होगा? मतलब कभी आपने करा है ऐसा? तो क्या होगा कि आपका जो, लेट्स से कि आपने कोई यूज़ किया, ठीक है, पी यूज़ करा और आप उसको क्लोज करना भूल गए, तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो एक पैराग्राफ में कन्वर्ट होकर के वेबसाइट पे व्यू होने लग जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप अनइंटेंडेड एक्शन हो जाएंगे कि आपने ऐसे कोई टैग यूज़ करे हैं क्योंकि आपने क्लोज ही नहीं करे, ठीक है। और तब क्या होगा कि अगर आप HTML वाला ही टैग नहीं क्लोज करें, फिर तो बता सकता है, तो बता सकता है कि अगर हमने HTML वाला टैग, नथिंग, मतलब क्या एक्सप्लेन तो करें, क्या नहीं होगा? इसको भी ब्राउज़र इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगर आप में वहाँ HTML वाला भी है, इसको अगर आप भूल जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपके जो पेज है ना, आपने जो नोटपैड पे बनाया है, उसमें भले ही आपने HTML नहीं लिखा है, लेकिन जब वो ब्राउज़र पे रेंडर होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्लोजिंग टैग को इंट्रोड्यूस कर देगा वहाँ पर। तो आप जो लिखते हैं ब्राउज़र पे जब जाता है, उसके बीच में फिल्टर होता है जहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मतलब चीज़ें जो आपने गलती करी ना ऑमिट हो जाती हैं, ठीक है। तो आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चन जो कि मैंने प्रिपेयर करे थे आप लोगों के लिए। हाँ, किसी ने लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? लिस्ट कैसे बनाते हैं हम एक HTML पेज पे? लेट्स से आपको शॉपिंग की लिस्ट बनानी है, तो आपने वहाँ पे लिस्ट का कभी यूज़ किया? क्या टैग होता है? नहीं नहीं नहीं, आशीष, वो वाली लिस्ट नहीं, पाइथन वाली लिस्ट नहीं, वो एक डिफरेंट लिस्ट होती है, पाइथन जावा। ये लिस्ट वो वाली लिस्ट होती है जो आपको UI पे दिखानी है। एग्जैक्टली, हाँ, UL एंड OL। अभी ना UL एंड OL में डिफरेंस बता सकते हैं आप? और फुल फॉर्म क्या होती है UL और OL की?
ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। कोई भी ऑर्डर्ड लिस्ट है, मान लीजिए कि आपको कोई भी लिस्ट ऐड करनी है कि नंबरिंग से 1 2 3, तो आप ऑर्डर्ड यूज़ करेंगे, और अनऑर्डर्ड है बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। और कुछ भी उसको मतलब आपको कोई एक ऑर्डर नहीं चाहिए, बस बुलेटिन पॉइंट्स में फॉर्मेट लिखते हो, आप उसमें यूएल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, कोई मुझे दो एट्रीब्यूट, चलो फॉन्ट से तो मैंने आपसे पूछ लिया, तो हो गई। स्ट्रक्चर ठीक है यार, HTML में तो इससे कुछ खास ज़्यादा होता नहीं है। आई थिंक मैंने काफ़ी मेजर चीज़ें अभी कवर कर दी हैं। और आप लोग को अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट HTML को लेकर के, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी जो आप पूछना चाहते हैं। एंड ऑल्सो अश्विनी, क्या हम कुछ पोल टाइप का करा सकते हैं इसमें कि इफ आई मे इंट्रोड्यूस जावा इनटू दीज सेशंस? Yes, I just need to check. अगर हमारे पास पोल हो उसमें बच्चे इन्वॉल्व कर सकते हैं। You can check, sir. एक बार आप अपने yeah, polls and quizzes. या यहाँ पे पोल स्टार्ट कर दीजिए कि वो जावा सीखना चाहते हैं या नहीं, बेसिकली क्योंकि एआई वगैरह के भी काफ़ी कुछ आ रहा है, और जावा वगैरह इन सब चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितने भी बैक एंड टेक स्टैक है, एआई का जितना भी काम है सब बैक एंड टेक स्टैक पे ज़्यादा होता है। तो अगर आप जावा लर्न करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। So what is the question for the poll, sir? क्वेश्चन इज बेसिकली, डू दे वांट टू लर्न जावा, और shall I continue with CSS? I think most of them will say Java. In Java, I'll also introduce you to AI concepts, like how to recover data from AI. Like if you have to create an application which talks to ChatGPT and responds to you without you ever going to ChatGPT website, and those kind of things. We will not learn JS. Okay, I'm not asking you JS, Abhinav. I'm asking you to learn Java, and those are two different things. So I guess you will be learning Java. I want to learn Java. Okay. Okay. Okay, Rashesh. Can I end the poll? Okay, Abhinav, in future sessions alongside Java, I'll also introduce you some front-end concepts on JavaScript. But in the meanwhile, I think the poll goes to Java, and along with Java, I'll also try to make some slides and make some codes accessible to you for front-end as well. We can start, I think, with Java. Okay, then I think this is it from my side, and thanks for all the inputs you have been giving. Uh, I'll just introduce you to Java in Okay. further sessions. Okay, sir. So can we Yeah, end the webinar? absolutely. Okay, Absolutely. thank you everyone for joining. Thank you. You can leave the webinar. Any question from my answer? Do you want in chats or? No, I think everything is fine. If you want me to change something from format, because 6 sessions are still remaining, so if you want me to change the formatting or anything, any input you might have for me, you can share it openly. Sure, sure, sure. If anything we want, we'll share you. Surely. Thank you. Okay. Thank you. I'm Bye ending bye. the webinar for all. Thank you, everyone.